Generics both plays a major role for developing any applications. Normally, we adopt these two topics for developing the applications. Or these two applications can use in developing a softwares. So normally, all the controls of ASPX space supports collections. GridView is a collection of records. Similarly, repeater or your data list. The name says to us it's a list. Name says to me a repeater. There is a n number of records in one container called repeater. And GridView, we know better mathematics called matrix. It is a collection of rows. It's called GridView. So GridView is a collection of records, so we can easily bind any object which supports collection with the GridView. We always think or crazy for database connectivity via GridView using AD.NET. I don't think so. To get a data in GridView, I require always database connectivity. I can take any class which supports collection and we can map with the GridView. So taking a class of collections based and mapping, suppose there is a scenario, I want to go for semantics, आपके नंबर पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? मेरी किसी जगह जॉब करती है, आपको ये क्लास आपको काम आएगा, प्रति जगह को काम आएगा, ठीक है? अब आप लोग सुन लो, आप लोग की जिंदगी बन जाएगी. So I said I want to go for using collections because there are three topics which make a major role in development. One is the collection and generics, and third is exception handling. The rest you can prevent or you can use, it is up to you. Whether you want to go for trading, you want to go for synchronous callback, whether you want to go for delegate or event. So in a company level, if you get a project, very less chance to make a delegate, because less chance to make a events, because we have inbuilt events in ASP.NET. That's why for developer level, they have not a good knowledge of delegate and events, because we have inbuilt delegates in .NET, inbuilt events in what? ASP.NET suppose page lifecycle. So similarly, we have inbuilt collections in .NET. First of all, you have to be smart answer collections. Collection can simplify your task, which can minimize your efforts for developing the applications. Whenever you write a program of 10 lines of code, why do we go for 10 lines of code? If I feel the suitable programs are kept somewhere in the framework library, I can use those ones. So suppose now, sir, I have one chance. I want to go for log maintenance in my project. I'm sharing my experience. I want to go for log maintenance. What is log maintenance? Whenever client hits any web page, so I want to maintain a log file in a server. So I would like to maintain how many users have hits me or visited on a website. Wait for the class of application lifecycle. Remaining portion is called left call, HTTP module. So in application lifecycle, only the base part is called HTTP module. So by the module you can have the events. So whenever client requests any web page, I have discussed several times in a batch. There is a syswork, there is a pool works, there is a worker process works, there is ISIP works, there is a handler works. I never discuss the events in application lifecycle. So HTTP module is a class which is a collection of events, and you can track at what time you reach on the particular website. So if you give me any clip of your recording, I can see where you stand on it. So HTTP module is a collection of events. So we can keep track whenever client requests where is the stand on this particular time by the events. So I can define some events in by HTTP module class. There is a begin request, there is an authenticate request. There are approx 15 events in a HTTP module. So by those events, I can keep track which stands for requesting a web page. तो मैं पेज को रिक्वेस्ट करके कहाँ पे बैठे हो मुझे पता है इस वक्त. He has to go Lajpat Nagar for list of class.
मेरी ऑफिस सीडैक की एक ज़माने में हौसखास में होती थी। तो अगर यहाँ से अंकल निकल चुके हैं, इनके निकला अगर 12 मिनट हुआ है, आई कैन अंडरस्टैंड कि नाउ ही इज इन बिटवीन द टॉल बी समवेयर राइट नाउ। अगर 30 मिनट्स क्रॉस कर गया, ही डेफिनेटली हैड क्रॉस द ईस्ट ऑफ क्लास। हमारा राइट अंकल? तो 15 से 20 मिनट का जर्नी होता है यहाँ से आपके ईस्ट ऑफ क्लास का। तो मुझे पता है कि तुमने तो फेस को रिक्वेस्ट करा, तो इसमें सर कहाँ स्टैंड कर रहे हो? दैट्स कॉल्ड विजिबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। मैं को वहीं पे ट्रैप कर लूँ। ग्रेट टॉपिक is only great topic of entire .NET, if you ask me personally, HTTP module. By this topic, I can keep track whenever client requests any website. At this time, where is he or she? Man starts moving to Lajpat Nagar. The time is 25 minutes. I can have a mathematics. 60 minutes. The speed is 60 km per hour. You can move at how much kilometer? 60 kilometer. Fine. So 60 speed, 1 minute, 1 kilometer. But there is a friction on the road. There is a rush on the road. I have a maximum potential 40-50 in between. Am I right? 40 to 50 is the speed. You can divide. You can think of after 12 minutes where you stand. And I consult any person. From that point he can track you or trap you. Sorry, not track, trap you. So by HTTP module I can trace where is the request to. Is it arrived? Is it in between or just started? It's a great topic. Great topic. So for log maintenance I would like to have the knowledge of HTTP module. So I can maintain the history on the website, on the server side. If 36 users have requested, and out of 36, what he is doing, I can keep track. So I have to maintain a file, because for log maintenance, normally we take a text file on the server side. So we make a one folder on server side, log, and there is a one notepad. I can write all the systematic plan with this events, this user on this particular page is accessing, this user just arrived on the website, and this user already arrived at 9:35. It's a duration of 25 minutes till right now. So maybe now I have made a log maintenance by HTTP module. Wait for my class of ASP.NET. It is there. Application lifecycle, the last part of HTTP module. Just before HTTP handler. जब वो पहुंच गया बेटे ASPX के पास, तो बात किस बात की? ASPX में पहुंचने से पहले तुम कहाँ हो? अंकल के घर पहुंचने से पहले इनको ट्रैप कर दिया रास्ते में, बाय द टाइम, बाय द मैनेजमेंट. सो यू हैव अ ग्रेट टॉपिक फॉर HTTP मॉड्यूल. चलो हमने 15-16 इवेंट पढ़ ली. इस पर बंदा कहाँ हो सकता है? मैंने वहाँ पे ट्रेस लगा दिया और डेटा जो है हमने मेंटेन कर ली. बोलो कहाँ पे? किसी लॉग फाइल के अंदर. आईओ नेमस्पेस को यूज करके करा चुके हैं. कॉपी हर की कॉपी में लिखा होगा. आईओ नेमस्पेस मैंने यूज किया था, पता कहाँ पे? सिक्योरिटी वाले में, जब मैंने डेटा इंक्रिप्ट किया था. आप कॉपी खोल के देखो. हमने फाइल क्लास का स्टैटिक फंक्शन यूज किया था, क्रिएट टेक्स्ट, और वो फंक्शन रिटर्न करता है स्ट्रीम राइटर क्लास. कॉपी खोल के देखिए. हर को मैंने कराया. जिसको मैंने कराया बोलो कौन? इंक्रिप्शन ऑफ कनेक्शन स्ट्रिंग और लॉगिन का क्या करवाया था वो? सिक्योरिटी, फॉर्म ऑथेंटिकेशन. तो मैंने फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन के जो लंबा सा पासवर्ड आया था उसमें फिलहाल किसी बोलो फाइल में होल्ड किया था, और बाद में क्या बोलो web.config में प्लेस किया था. इस वाले बैच की बात कर रहा हूँ जो मेरी बैच चलती है C# की, ASP.NET की बैच. मॉर्निंग वाला नहीं, जो 3 से 5 का बैच है. वह मैंने कराया था सिक्योरिटी इन ASP.NET. कॉपी खोल के देखो. बाई फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन हमने एक एडमिन का पासवर्ड जनरेट किया था, याद आ रहा है? एनीवे हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम सिंपल बोल रहे हैं. देयर इज आईओ नेमस्पेस, देयर इज अ फाइल क्लास, देयर इज अ क्रिएट टेक्स्ट फंक्शन. बस इवेंट का नाम पता करना है कि मैं यूजर को किस पॉइंट पे ट्रैप करूं, और जो ट्रैप करके डेटा मिली वो डाल दिया फाइल. अब देख मेरे फाइल में 17,000 डेटा आ गए, जो बताता है इस वक्त वो यूजर कहाँ पे. You go to watching a match? No. You will go for watching any race in a TV or race on a car. They have this one dashboard. This person on this track
in within particular second. They have got a dashboard on this. They're showing all the log of every lesson. तुम बोलना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा सर मैंने लॉग मेंटेनेंस के ऊपर काम किया प्रोसेस में, उसके लिए मेरे को पढ़ना पड़ा एप्लीकेशन लाइफ साइकिल, और उसके लिए कौन कौन से इवेंट है और किस वक्त इसको मैं कहाँ ट्रैप करूँ, वो आती है मुझे। सेकेंड, हमें आईओ नेमस्पेस का एक फाइल क्लास यूज करना पड़ा। आई मीन फाइल क्लास के स्टैटिक फंक्शन को यूज करा और जो हमने ट्रैप करा उसको डाल दिया फाइल में। अब ये साइट पे एक एडमिन लॉगिन करेगा, कॉपी खोल के देखो करवाया है, जो मेरी बैच है ट्यूसडे वाली, थर्सडे वाली और सैटरडे वाली बैच 3 से 5 और 9 से 11 वाले, वो हमने एडमिन के लॉगिन को सिक्योर करा है web.config। नहीं याद आ रहा है? अब एडमिन जब लॉगिन करेगा प्रत्येक तो उसको क्या मिलेगा, कौन सा यूजर कहाँ बैठा है। तो मैंने गिडबू के ऊपर क्या लिया, गिडबू लिया। अब गिडबू में डेटा कहाँ से आएगी, बोलो फाइल से आएगी, नहीं डेटाबेस से आएगी। तो फाइल से डेटा कैसे लाऊं गिडबू में? डेटा रीडर और डेटा सेट, सर दोनों धोखा देगा मेरे को, दोनों बदतमीज ने धोखा दे दिया कि डेटा रीडर तब चलेगा जब डेटाबेस होगा, तब डेटा सेट तब चलेगी जब टेबल ने कॉपी करा, कहाँ पे बोलो, डेटा सेट बाय अडैप्टर। बस 17,000 रिकॉर्ड बोलो कहाँ पड़ेगा, बोलो किसी फाइल के अंदर। मैं फाइल को कैसे लाऊं गिडबू के ऊपर और अपने बॉस को दिखाऊं एडमिन लॉगिन। तो एडमिन जब लॉगिन करेगा अंकल, उसको क्या दिखेगा कि कौन सा यूजर कहाँ पे है इस वक्त, साइट पे कितने यूजर हिट करके बैठे हुए हैं, इसका मुझे लॉग मेंटेनेंस करके तुम दो। तो हर चीज का मैं डेटाबेस यूज नहीं कर सकता, व्हाट आई विल यूज देयर द फाइल। ठीक है, ये कराएंगे आपको, हम चिंता ना करें, इसी वाले बैच में कराएंगे। तो चलो मेरे पास फाइल में अंकल डेटा आ गई। अब मैं फाइल से डेटा को रीड करूंगा, वाइल लूप लगाऊंगा और कहाँ डालूंगा, बोलो एरे लिस्ट में, और बोलो कहाँ मैनेज करूंगा उसको, बोलो ग्रिड व्यू के ऊपर। तो हमने लास्ट टाइम क्या कराया, ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट ऑफ एरे लिस्ट और ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा बाइंड। हाँ, हमने बस गलती ये करी, अपने मन से कुछ उल्टा पुल्टा भर दिया, बोलो कहाँ पे एरे लिस्ट में, और उसको ग्रिड व्यू से मैप कर दिया। तो वेट फॉर द बेबी बैच ऑफ एप्लीकेशन लाइफ साइकिल लास्ट पार्ट को बिफोर HTTP हैंडलर, इसका HTTP मॉड्यूल सारे इवेंट्स का नाम देखना है और उस इवेंट को ओवरराइट करेंगे और यूजर का नाम ट्रैप करेंगे, एक यूजर कितने बजे लॉगिन हुआ। अभी सर किस पेज को सर्व कर रहा है, एक बच्चा सेंटर में आया सुबह 9 बजे, अभी सर किस क्लास में, उसकी इन टाइम किस पेज के ऊपर काम कर रहा है, अब तक वो कंटिन्यू है, लॉग आउट नहीं हुआ है। 17 बच्चे, सुबह 60 बच्चे आए, 50 क्लास करके चले गए, 10 अब तक बैठे हुए सेंटर में। तो एडमिन क्या करेगा, लिस्ट देखेगा, वो मैनेज करेगा, उसे क्या पता है साइट पे क्या लुक एंड फील है, उससे मतलब नहीं, उसको बस बिजनेस से मतलब है। तो एडमिन अगर लॉगिन करेगा सरदार जी, तो उसको क्या दिखेगा, कितने हिट्स हैं। अंकल जाएंगे शाम में अपने ऑफिस में, क्या पता करेंगे, इनका अपना ऑफिस है भाई, ये क्या देखेंगे यार कितने क्लाइंट सुबह से शाम आए। इनके पास कोई बंदा होगा जो पूरी रिकॉर्ड ट्रैक मेंटेन करता होगा, किसको किसने इंक्वायरी हैंडल करी, क्या उसका फीडबैक है, वो शीट दिखाओ मेरे को। तो एडमिन जब लॉगिन करेगा, उसको क्या पता इंसर्ट इनटू क्या हुआ डेटाबेस, उसको बस सिंपल देखना है हिट्स कितने हैं, कितने बंदे मॉल में सुबह से लेकर शाम तक आए, उसके बाद तुमने एक्स्ट्रा शीट भेजो, मेल करो। तो एडमिन की रोल क्या है, द सक्सेना विल टीच यू द प्रोजेक्ट पार्ट, what is your model in project. I am discussing what is the admin role. और एक प्रोजेक्ट बिना एडमिन का हो ही नहीं सकता है। तो आईओ से फाइल में राइट करना तो आ जाएगा और एरे लिस्ट में डेटा भी आ जाएगी और उसको गिडबू से मैप कर देंगे, बट वो यूजर का नाम प्लस उसकी इन टाइम प्लस और वो नहीं, वो किस वक्त किस पेज पे बैठा है, चौथा वो किस डोमेन से आया है, किस डोमेन से आया है और कितने देर लॉगिन करके बैठा है, इसके हम लोग को रिकॉर्ड भेजो। तो साला फंस गया यार। तो कलेक्शन तो आ गई अंकल, कैसे
एड लिस्ट को यूज़ करेंगे। सॉर्टिंग भी सिखा दी मैंने आपको लास्ट क्लास में, और फाइल में राइट करना भी सिखा दूंगा, और फाइल से वाइल लूप चलाऊंगा, और किसको दूंगा बोलो, एड लिस्ट को, और एड लिस्ट किसको देगा बोलो, ग्रिड व्यू को। मेन चीज तो आता ही नहीं। और हाउ आई कैन whenever client request any web page, I want to really get client username, point one, or second, by which browser is requesting to me, at what time he has requested to me, and now currently he is on which page is surfing currently this time। और ये भी दिखाओ उसने 12 घंटे का लॉगिन करके बैठा है बदतमीज, उसने कौन कौन से पेज को सर्व करा। एक बच्चा का सुबह 9 बजे आया, शाम के 6 बजे गया, पता उसने कौन कौन सी मेरी क्लास करी। ये सब एडमिन का बोलो क्या है, मॉड्यूल है। इसके पीछे एक ही बंदा सारा कर सकता है। एप्लीकेशन लाइफ साइकिल का HTTP, सोच लो कितना खतरनाक टॉपिक है। सारे इवेंट को पढ़ना पड़ेगा। और जो पेज लाइफ साइकिल है वो तो रिक्वेस्ट करने के बाद का, हैंडलर के बाद का। तो व्हाट इज, तुमने क्या देखा, तो टेंशन हो गई, किससे क्या बोलना चाह रहे हो यार। इनके अगर आप सुनिए, मैं आपके लिए बोल रहा हूं, आपका यहां से इस्ट ऑफ क्लास तक जाना और घर में जब चला जाना, फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। नाउ देयर इज ए पेज लाइफ साइकिल आफ्टर रीचिंग अ होम। खाना खाना, सोना, टीवी देखना, लोगों से बातें करना, क्या हुआ जी आज सारा दिन बतलाओ मेरे को, ये क्या है बोलो, पेज लाइफ साइकिल है। तो मैंने बनाया तो था सुबह फिगर कि मेघा देखा नहीं, उस क्लास में फंक्शन पड़ी है, उस क्लास में फंक्शन पड़ी है, इस क्लास में फंक्शन पड़ी है, और ये क्लास भाई तुम्हारी वेब पेज है। अरे यार वेब पेज जब कॉल हो गया, जब हैंडलर कॉल हो गया, तो बोलो कौन आएगा, पेज लाइफ साइकिल। मजा तो उसको पहले ट्रैक करो, यहां से यहां तक रिक्वेस्ट। इट मीन्स द प्रोग्रामर is achieving the business logic of a project. He has got a synopsis, he makes a table, he makes a trigger, he makes a proc, he makes a function, he do the normalizations and start making a web page and all there. But being as a senior banda in that project, he is handling the admin module. It means his logic is before arriving on the website, and programmer logic is what? After what? Arriving on the website. सोचिए क्या लाजवाब है। अब चला पता सर क्या बोलना चाह रहे हैं। एप्लीकेशन लाइफ साइकिल रिक्वेस्ट अराइव होने से पहले, और पेज लाइफ साइकिल रिक्वेस्ट अराइव होने के बाद। आप देखो ना, एक बच्चा किसी बच्चे का पीछा करता है, वो बच्चा बचने के लिए खुद दौड़ता है, और जहां देखता है मदर फादर को उसमें घुस जाता है। वो बच्चा जो दौड़ रहा था अब नहीं जाता है वहां तक, क्यों? उसको डर गया, अंदर से डर गया। तो मैं उसको ट्रैप करूंगा उसके मदर फादर पहुंचने से पहले। इसी बच्चे गिर जाते हैं आपस में, छोटा जाता घरों को। जब वो मिल गया फादर मदर, फिर क्या हो गया बोलो, पेज लाइफ साइकिल। अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, अब उनके लाइफ साइकिल में क्या बोलो बन गया, देखा चलो। अब जो इवेंट है उसको छोड़ेगा नहीं। अब किसकी इवेंट चलेगी बोलो? आपकी क्लास के बाप, आपके पापा की इवेंट चलेगी। चलो नालायक तुम, पेज इवेंट्स। अब बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, छोटा सा लगा नहीं पापा जाने दो, नहीं घर चलो कर देखो। इट मीन्स देयर आर टू लॉजिक कैन हैव इन अ वेबसाइट। वन लॉजिक बिफोर request arrives on the server, and second logic once a request happen arrive on the server। आपका बटन पे क्लिक करना, पेज का लोड है जी, इंसर्ट हैगा, अपडेट होगा, सर्च होगा, जो भी करोगे ये सब अंकल क्या बोलो, पेज लाइफ साइकिल है। और उसके पहले का जितना है वो क्या बोला, एप्लीकेशन लाइफ साइकिल। तो मैंने इसको कलेक्शन का एग्जांपल दिया, हमने कलेक्शन कहाँ यूज करें अपने प्रोजेक्ट, ठीक है। तो बस इसका पूरा एक आपको मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट आर्किटेक्चर मिल जाएगा। आज के वेडनेसडे, वेट फॉर द फ्राइडे क्लास, आई विल गो फॉर। मेरी बैच चल रही है किसी बैच में, आई एम टीचिंग नाउ इट इज एप्लीकेशन लाइफ साइकिल। तो फॉर्चुनेटली
अब फ्राइडे को मुझे मॉर्निंग में पढ़ाना है एप्लीकेशन लाइफ साइकिल किसी बैच को 12 बजे, और इनके वाले बच्चों में बैच कुछ क्या चल रहा है 3 से 5 का है, वहाँ क्या चल रहा है बोलो। अब मुझे दोनों जगह बोलो क्या पढ़ाना है, STTP मॉड्यूल पढ़ाना और STTP हैंडलर। अंकल जब मॉड्यूल खत्म हो गई तो बोलो कौन आ गया, हैंडलर। बच्चे को पापा मिल गए, ना बिल्कुल दौड़ना बंद कर देगा, और जो पीछे दौड़ रहा था वो भी शांत हो गया, वो भी लौट के चला गया, और उस पापा घसीट के ले गए, कहते चलो ना घर में चलो। It means there are 2 ways I can inject my logic. There are 2 ways I can inject my logic. One logic before request arrives on the server, and second logic what you have request arrived after. So mostly I have seen there is a man who is a programmer, just programmer or developer. He think of the PLC, how to make a form, how I can go for login, go to second page, welcome to Sandeep, sign out है जी, इंसर्ट है जी, बहुत सारी चीज़ हैं। वो जितने चीज़ हैगा वो आपके रिक्वेस्ट अराइव होने के बाद कर, पर रिक्वेस्ट अराइव होने से पहले तो मैंने जवाब दूँ, तुम पहले क्वेश्चन करो। जो लैब में एक वेब पेज बनाओ, और उस वेब पेज को मैं रखता हूँ IS के ऊपर, और लैन का तार जोड़ देता हूँ, और 3 कंप्यूटर देता हूँ, जाओ 3 कंप्यूटर। अब तो मुझे इस ग्रिड व्यू के ऊपर जब पहला रिक्वेस्ट आएगा वो ब्राउजर खोलेगा, रिक्वेस्ट आएगा सर्वर पे, सेकेंड रिक्वेस्ट आया, थर्ड रिक्वेस्ट आया, तीनों का तुम डेटा किसी फाइल में मेंटेन करो। और क्या क्या मेंटेन करो, बंदे का यूजर नेम, रिक्वेस्टेड टाइम, वो किस किस पेज को सर्व करा अब तक, और व्हाटएवर। तो हमने कलेक्शन इसलिए यूज किया कि आई कैन यूजिंग कलेक्शन आई कैन गो फॉर रिट्रीविंग अ डेटा from any sources, but by the problem is there, ADO ordinary support करता है collection। data set is a collection of tables, data set Y collection। तुमने collection कहाँ यूज किया, सर मेरी पूरी ADO ordinary collection बेस चलती है, कहाँ चलती है सर, data set is a collection of table, data rows is a collection of row। नहीं, हम उस कलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तुमने अपनी कलेक्शन बनाई है। हाँ सर मैंने अपने कलेक्शन यूज करे हैं, कौन से क्लास से, एरे लिस्ट क्लास। बट डेटा जो आपको मैंने लास्ट क्लास में हार्ड कोड करके दिखाया वो थोड़ा गलत है, डेटा को किसी फाइल से आनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम होता है, द मैन वर्क ADO.NET, ही सेव डेटा इन टेबल, अप्लाइंग SQL कमांड क्लास, और एग्जीक्यूट रीडर फंक्शन, और एडाप्टर क्लास, fulfill function। Means that he is always giving a time for fetching a data from table of database. He didn't get a time to go for fetching a data or feeding a data into what you are any text। और थर्ड XML की एंट्री। इस कोर्स में जब बाहर निकले आपको 3 प्रकार से एंट्री आनी चाहिए। सोचो 3 प्रकार का एंट्री आनी चाहिए। एक एंट्री बाय XML, जिसका सिलेक्शन हुआ दीपक झा का आर सिस्टम, उसे बोला मैं XML में एंट्री करके दिखाऊं, XML फाइल में। मैं कोई प्रोग्रामिंग नहीं करूंगा, कॉन्सेप्ट्स डिलीवरी, कोई प्रोग्राम नहीं। प्रोग्राम बनेगा परसों वाली क्लास में। ये मेरी वेबसाइट है, ये ओके बटन हो गया। ये अंकल मेरी वेब क्या खोल दिया ग्रह, कुछ टकरा गया यहाँ पे। देखिए अंकल जी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये मेरी वेब पेज हो गई। प्रोडक्ट स्पेलिंग छोड़िए, प्रोडक्ट प्राइस, सेव का बटन, तीन टेक्स्ट बॉक्स हो गए, 3 टेक्स्ट बॉक्स, 3 अंकल टेक्स्ट बॉक्स हो गए।
यहाँ पे आया, एक क्लास लेयर्स पे काम करने वाला बंदा हूँ हम लोग, क्लिक इमेज नहीं आती हम लोग, ठीक है। प्रोडक्ट की डेटा एक्सेस लेयर ऐड पे है। इस क्लास में एक बना दी फंक्शन प्रोडक्ट पब्लिक इंट प्रोडक्ट सेल इंट प्रोडक्ट आईडी स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम इंट डबल प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है अंकल। उसको मैंने पूरा एक लेआउट बना के दिया, सर देखो ये मेरा लेआउट, टॉपिक चल रहा है कलेक्शन, एक एग्जांपल दे दिया कलेक्शन का, लॉग मेंटेनेंस के। पर अभी कर नहीं सकते हैं बेटे कि हमें यूजर का नाम, उसकी इन टाइम, वो सब नहीं आता, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा एप्लीकेशन लाइफ साइकिल। या अदरवाइज बच्चे वाली बात करोगे तो डेटा बोलो कहाँ डालेंगे, बोलो फाइल में, और फाइल से लूप लगा के बोलो कहाँ पे डालेंगे, एडिट लिस्ट में, और वहां से कहाँ निकाल के डाल देंगे, बोलो गेट व्यू में। इसमें लास्ट क्लास में करा था, वाइल लूप लगाई थी डेटा रीडर के ऊपर, बोल कहाँ दिया था, एडिट लिस्ट को, और डेटाबेस को निकाल के डालेंगे बोल किसको, आईओ को। अब देखिए अंकल नेक्स्ट एग्जांपल, बोलेगा नहीं यार 3 बंदे एग्जांपल लेके गए कलेक्शंस का आईओ के ऊपर, लॉग के ऊपर, कुछ नया बोलो यार, तुम कुछ नया बोलो, विच कैन टच माई हार्ट, कुछ नया बोलो यार जरा। ये इसको कॉल करेगा, अगर ये बदतमीजी करेगा इसको क्या मिलेगा, एक्सेप्शन मिलेगा, am I right? और ये प्रिपेयर्ड है बंदा, ये पहले से प्रिपेयर्ड है, आपने लेआउट पे पहले से लगा रखा है, बोलो क्या ट्राई, तो एंड व्हाट, पहले से प्रिपेयर्ड है, सही बोल रहा हूँ। ऐसे काम करती हो ऑफिस में, ऐसे करती है ना, तो सिखा दो मेरे बच्चों को, तुम बनाए का इस पॉइंट पे उस क्लास का बनाऊंगा ऑब्जेक्ट, लेआउट तैयार कर दिया, सी ए न्यू बट, क्लास का नाम क्या था, डेल पी न्यू बट प्रोडक्ट डेल एंड पी डॉट बोलो कौन, पी डॉट फंक्शन का नाम बोलो कौन, दिस, यहाँ से 1,2,3 पास कर देंगे हमारा, राइट, और इसको होल्ड करा देंगे इन पी में, ठीक है। और कोई बदतमीजी होगी तो कहाँ देंगे, बोलो कैच में। सब कुछ सही रहा तो लेवल 1 डॉट टेक्स्ट में दिखा देंगे। अच्छा, उस बंदे कहाँ से सुनो, क्या तुम बदतमीजी का वेट कर रहे हो, बड़े गंदे आदमी हो यार, से क्या बोल रहे हो, तो बंदे को टेम्परामेंट खो दिया, क्या तुम बदतमीजी का वेट कर रहे हो, रेडी, आर यू वेटिंग रेडी टू गेट एनी एक्सेप्शंस, और तुम उसको हैंडल करोगे, क्या तुम्हारे हैंडल करने से वो काम हो जाएगा, आपको नहीं पता तो समय ने लगा दी एक्सेप्शंस, तो मेरी बात समझ नहीं रहे हो, माना एक्सेप्शन लगाने से, एक्सेप्शन को मैनेज करने से तुम प्रोग्राम में कंटिन्यू रह गए, बतलाओ क्या फायदा कंटिन्यू, तो जिस चीज के लिए हेल्प किया तो वो काम तो नहीं हुआ ना। और कहते किस बात पर कंटिन्यू, मेरे पास एक ही बटन है साले, एक ही सेव का बटन है, कोई नया फंक्शन और नहीं है। ये सब बातें मैंने नहीं कर पाया था बोलो एक्सेप्शन वाले क्लास में, तो क्या करूं फिर, देखो वो तुम देखो दीपक जाप सिस्टम, वो तुम देखो, तुम्हारे कैच लगाने से क्या होगा, तुम मेरे को एक प्यार सा बदतमीजी से थप्पड़ मार के बोलते आई एम सॉरी यार, कम ऑन, एंड यू कैन कंटिन्यू इन अ प्रोग्राम, बट ये समझ में नहीं आया हमने कंटिन्यू रहा क्यों, जब मेरा काम ही नहीं हुआ तो। सर ऐसा है, आप कैच में आप मेरे को मैसेज मत दिखाओ प्लीज, क्या दिखाओ, यस ब्यूटीफुल, अगर कैच आया बेटे, अगर कैच आया, ठीक है, इस वक्त एक XML की फाइल खोलो, ओके, और एक टेक्स्ट फाइल खोलो, खोल लिया,
कैसे मत पूछो, जैसे फाइल क्लास एंड जितने डेटा है उस यूजर के वो कहां पे डाल दो, एड ए लिस्ट में। नहीं है सर, तुम मैसेज मत दिखाओ प्लीज। ये काम होना चाहिए कैसे भी हो। Sometime I hit exception mechanism to catch exceptions. By exception handling technique, I can tolerate your exceptions, but doesn't mean problem is removed. उस केस में आपकी जो डेटा है, सोना दिलीप, जितना डेटा है बेटे वो कहाँ डाल दे, किसी कलेक्शन वाले बने बनाए क्लास में डाल दो। सेकेंड यूज ऑफ कलेक्शन, जो बने बनाए तुम्हारे क्लास है अंकल कलेक्शंस के, आप उत्थे डाल दो। तो डेटा टेम्पोररी कहाँ आ गई, आ गई। उसके बाद XML की फाइल खोलो या टेक्स्ट फाइल खोलो और डेटा कहां डाल दो, बोलो फाइल के अंदर। नहीं है सर, और मैसेज दिखाओ जो रिकॉर्ड हैव बीन सेव्ड। उस बच्चे को नहीं पता रिकॉर्ड सेव नहीं हुई, सॉरी उसको ये नहीं पता प्रॉब्लम क्या है बैकग्राउंड में, बट काम तो हो गया ना। और जब आपका डेटाबेस ऑन हो जाए, जितना आपने रिकॉर्ड की थी फिलहाल बोलो कहां पे करी थी, ये XML के फाइल में, ये टेक्स्ट के फाइल में, वो कहां डाल दो, डेटा बेस में। नहीं है सर, अरे बोलो यार। नहीं है समझ में, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ आप कुछ नहीं, आपका प्रोग्राम लिखना है। नीड टू राइट प्रोग्राम टू टेक डेटा फ्रॉम ASPX page to hold any collection what based what class like what add a list, then open the file, write on to the what file. Once database is what activated, then get data from what file, and finally what save in what नहीं है समझ में, नहीं है समझ में। तो आपको बालक 3 प्रकार से इंग्लिश सीखनी। So far we have covered only one way how I can go for saving a record into what database. Second, I will go for saving a record into what file. I will go for saving into what XML. पर तुम मेरे को बदतमीजी मत दिखा। तुमने उस मैसेज से यूजर को कन्विंस तो कर दिया, पर मेरा काम अब तक नहीं हुआ। लास्ट एग्जाम्पल सुनना ठीक से, लास्ट एग्जाम्पल, ये सब मेरे एक्सपीरियंस ऑफ सिनेरियोज हैं जो आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लास्ट सुनना प्रतीक ठीक से। आप एक वेब पेज बनाते हैं, कम से कम क्या आना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल्स एंड डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड द वे यू कैन राइट द प्रोग्राम्स, प्रोग्रामेटिकल फ्लो। Suppose I'm making one web page uncle for ICICI Bank for a credit card processing. It's a project, it's a any web page for credit card processing for ICICI Bank. Don't you forget. Why you have forgotten? Why don't you forget? If you try to forget, you will have major loss. How? At 9:30, all over India, all over world, 6,000 clients are requesting a web page of ICICI for credit card processing.
6000 यूजर 9:30 पे क्रेडिट कार्ड की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। उनको पता है कि बॉस आएगा 10 बजे, काम मिलना शुरू हो जाएगा। ये आधे घंटे का समय है, जो मेल चेक कर लो, जो भी करना है कर लो, फोन पे बातें कर लो, जो करना है कर लो। 10 बजे के बाद नो फोन कॉल्स, बिजी जो वो वॉक एंड आउट, बस 20 के टाइम मिलेगा, बोलो 1 से 2 लंच के समय। ये 9:30 हो रहे हैं, आधे घंटे हैं, चल यार क्रेडिट कार्ड के लिए करते। साइकोलॉजी लेवल पे 6000 यूजर ने ऑल ओवर वर्ल्ड उस वेब पेज को रिक्वेस्ट करा क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग के लिए। वहाँ के प्रोग्रामर अगर बदतमीजी करते तो मैसेज दिखाते, जंटी बोलो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आई कैनॉट प्रोसेस द क्रेडिट कार्ड ड्यू टू डेटाबेस सर्विस इज नॉट बेसिकली वर्किंग प्रॉपर्ली। क्या पता उसको बोलने से क्या होगा। वो 6000 यूजर का मेजर लॉस हुआ उस बैंक को। और जितने बैंक वाले क्रेडिट कार्ड से कमाते हैं वो उतना कहीं से नहीं कमाते। उनका मेन मुद्दा इंडिया में कमाने का, इंडिया में जो भी होंगे उससे मुझे मतलब नहीं। 6000 लॉस हो गया एसएसआई बैंक को। उनके पास समय है, 6000 में से चलो 4000 यूजर भी वापस चला गया, अपने काम में बिजी हो गया, 2 जिद उतर गया, नहीं, मैं तो क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग करूंगा। वो कहाँ टर्न हो गया, टर्न अप कहाँ हो गया, एचडीएफसी बैंक में। जो वहां पे गया, किस्मत खराब, वो क्लिक करा, डेटाबेस ऑफ, वहां से एक्सेप्शन आई, थ्रो की, यहाँ कैच पे आया, वहां के प्रोग्राम में निकाल लगा रखा है, बोलो कलेक्शन प्लस एक्सएमएल राइटिंग। डेटा लिया, कहाँ डाल दिया बोलो, किसी कलेक्शन में, वहां से कहाँ डाल दिया बोलो, एक्सएमएल राइटिंग। स्मार्ट प्रोग्रामर। और थैंक्स फॉर कमिंग टू एचडीएफसी बैंक, व्हाटएवर योर थिंग हैव बीन प्रोसेस्ड, वी विल इन्फॉर्म विदिन 24 आवर्स। उसको ये नहीं पता बैकग्राउंड में क्या हुआ। कम से कम डेटा तक पहुंच गई। तो हम वर्स्ट केस, इसलिए मैंने कहा था उस दिन आपके बैच में, हम वर्स्ट केस में सोचेंगे, बोलो किसका, एक्सेप्शन। उसके बाद आता है बोलो बैकअप प्रोसेस। व्हाट बैकअप प्रोसेस? आई कैन टेक अ डेटा एटलीस्ट इन अ एक्सएमएल और टेक्स्ट फाइल। तो डेटा कहाँ होल्ड करेंगे बोलो, किसी कलेक्शन बेस्ड क्लास में, और वहां से निकाल के फिर कहाँ डालेंगे बोलो, एक्सएमएल के फाइल में। तो ये 3 एग्जांपल आपके पास, हम लोग तीनों एग्जांपल करेंगे। एप्लीकेशन लाइफ साइकिल से भी करेंगे, और एक्सएमएल फाइल से भी करेंगे, और बोलो टेक्स्ट फाइल से भी। चलो बंद करो। बट ये मत कहो हम एडिट ऑडिट नहीं करेंगे। जो वर्किंग होगी डेटाबेस कहाँ जाएगा, डेटाबेस में। अगर कोई इश्यू आएगी तो डेटाबेस कहाँ जाएगा, एक्सएमएल फाइल। और एक बना देंगे टूल, उस पर जब क्लिक करेंगे तो जितना